جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ بیٹا کیسے ہو آپ لوگ؟ جی میری آواز آ رہی ہے اسٹوڈینٹس؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، اس وقت صرف 12 اسٹوڈنٹ پریزنٹ ہیں۔ میں 5 منٹ اور ویٹ کر رہی ہوں اسٹوڈینٹس آپ کا، ٹھیک ہے؟ 5 منٹ کے بعد میں اسٹارٹ کرتی ہوں لیکچر، کیونکہ اس وقت صرف 10 لوگ پریزنٹ ہیں۔
جی السلام علیکم بیٹا، ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ اسٹوڈینٹس جو ہیں ابھی اونلی 14 اسٹوڈنٹ پریزنٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. اس دن میں آپ لوگوں کو ایلیمینیشن سسٹم پڑھا رہی تھی. ایلیمینیشن سسٹم جو ہے اس میں 2 سسٹم ہے. نمبر 1 یورینری ایلیمینیشن اینڈ باول ایلیمینیشن سسٹم، اور ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس دن یورینری ایلیمینیشن سسٹم. ٹھیک ہے، یورینری ایلیمینیشن سسٹم اس دن میں نے اس کی ڈیفینیشن بتائی تھی، اور یورینری سسٹم کی اناٹمی بتائی تھی آپ کو، اور کریکٹرسٹکس آف یورین بتائے تھے، اور یورین کی فزیالوجی بتائی تھی. پھر اکارڈنگ ٹو ایجنگ کہ یورین کتنی ایج میں کتنا یورین بلیڈر میں فل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آج ہم پڑھنے والے ہیں کہ فیکٹر انفلوئنسنگ یورینری ایلیمینیشن، کہ کون سے فیکٹر ہیں جو یورینری ایلیمینیشن پہ انفلوئنس کرتے ہیں. اب اس میں سب سے پہلے تو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. انفینٹ اینڈ چلڈرن کین ناٹ کنسنٹریٹ یورین، جس پہ یہ بتایا گیا ہے کہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اس طرح سے انفلوئنسنگ ہوتی ہے کہ نمبر 1 تو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ اس میں آ گیا. انفینٹ اینڈ چلڈرن کین ناٹ کنسنٹریٹ یورین. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انفینٹ تو بالکل اوپر ہی یورینیشن کرتے ہیں، تو چلڈرن بھی 3 ایئرس تک جو ہے وہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے یورین پہ، تو اس لیے انفلوئنس کرتا ہے یورینری ایلیمینیشن کہ ان کا یورین بیچ میں نکل جاتا. ٹھیک ہے، یورینری والنٹری کنٹرول آف یورین بگن ایٹ 18 to 24 month. کیونکہ جو والنٹری کنٹرول ہے یورینری سسٹم کا، جیسے اسفنکٹر مسلس ہیں ان کو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، تو وہ 18 سے 24 منتھ تک وہ یورینری کنٹرول سسٹم جو ہے جس کو اسفنکٹر مسلس کہتے ہیں وہ سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے فیکٹر انفلوئنس کرتا ہے جو انفینٹ اینڈ چلڈرن کے، کہ وہ اپنے یورین کو کنٹرول نہیں کر سکتے. فل کنٹرول ایٹ 4 to 5 years، اور اس کا فل کنٹرول جو ہے وہ 4 سے 5 ایئرس تک ہے. انفینٹ سے جو ہے وہ چلڈرن تک، چلڈرن جو ہے وہ 3 ایئرس تک کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 ایئرس کی ایج تک تو وہ کنسنٹریٹ یورین پہ کرتے ہی نہیں، بیکاز جو والنٹری کنٹرول آف یورین ہے وہ 18 سے 24 منتھ تک سٹارٹ ہونا ہے. سٹارٹ ہونا نا بگینز انہوں نے کہا، بٹ فل کنٹرول ایٹ 4 to 5 years، اور فل کنٹرول جو ہے 4 سے 5 ایئرس تک ہوتا ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 سال کے بچے جو ہے یورینیشن کا بتا دیتے ہیں، 4 ایئرس کے بتا دیتے ہیں، لیکن 4 to 5 ایئرس جو ہے فل کنٹرول تب تک ہوتا ہے. تو کبھی کبھار اس ایج میں بھی جو ہے 4 to 5 ایئرس کے درمیان بھی بچوں کا یورین نکل جاتا ہے، کیونکہ ان کے ابھی جو ہے والنٹری کنٹرول کمپلیٹ نہیں بنا جو 4 ایئرس کی ایج تک بننا ہوتا ہے. تو جو 3 سے 5 کہہ لیں، 3 سے 5 ایئرس کی ایج تک بچے کنٹرول کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، بٹ فل کنٹرول نہیں ہوتا. کبھی وہ بتا دیتے ہیں، کبھی وہ جو ہے کنٹرول ہو جاتا ہے ان سے، کبھی وہ جو ہے یورینیشن ہو جاتی ہے ان سے. ایٹ دی ایج آف 50 ایئرس ایٹروفی آف کڈنیز. 50 ایئر جو ہے وہاں تک جا کے ایٹروفی آف دی کڈنی ہو جاتی ہے. جب کڈنی کی ایٹروفی ہوتی ہے تو وہ بھی جسٹ لائک چلڈرن کی طرح کا بیہیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی بھی جو ہے یورینیشن یا فریکوینسی آف یورین اس طرح سے ہونا سٹارٹ ہو جاتا. پھر جو ہے سائیکو سوشل فیکٹر. اب سائیکو سوشل فیکٹر میں سب سے پہلے تو سائیکولوجیکلی جو ہے پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے. 3 ایئرس کا بچہ جو ہے اس کو بھی سب کے سامنے کہہ کے بیٹھ کے یورین کرے تو وہ نہیں کر رہا ہوتا. 4 ایئر کا اور میچور ہو جاتا ہے، اور 5 ایئرس کا اس سے میچور ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اس سے بڑی ایج کے بچوں کو بھی اگر فل پرائیویسی نہیں ہوگی تو وہ انفلوئنس آف دی یورینیشن ہوگا اس کا. تو اس مین کے پرائیویسی از ویری نیسیسری. آگے سفیشینٹ ٹائم، اس کے لیے سفیشینٹ ٹائم ہے کہ اگر کوئی یورینیشن کے لیے واش روم میں گیا ہے تو باہر سے دروازہ بجانا شروع کر دیتے ہو، اور جو یورینیشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا، یورینری پیٹرن جو ہے وہ
डिस्टर्ब हो जाता है। नंबर 1 साइको सोशल फैक्टर में प्राइवेसी मस्ट, दूसरा सफिशिएंट टाइम जरूरी होना चाहिए, तीसरा अप्रोप्रिएट पोजीशन। अप्रोप्रिएटेड पोजीशन भी नहीं होती तो यूरिनेशन नॉर्मली नहीं होता। फिर एंजाइटी स्ट्रेस एंड पेन, एंजाइटी स्ट्रेस एंड पेन इज वेरी जो है इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फॉर द यूरिनरी सिस्टम। अब ये हम यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं तो इसलिए मैं यूरिनरी सिस्टम की ही बात करती हूँ, बट ये एंजाइटी स्ट्रेस और पेन जो है हर सिस्टम पे इफेक्ट करेगी। अब जो है जब एंजाइटी होगी या स्ट्रेस होगा या पेन होगा तो यूरिनेशन नहीं होती, ठीक है, यूरिन ही नहीं आता, और कईयों को एंजाइटी में बार बार यूरिन आता है, तो ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द यूरिनेशन। फिर मसल्स टोन, वीक एब्डोमिनल एंड पेल्विक फ्लोर मसल्स। अगर वीकेंड मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स या पेल्विक फ्लोर मसल्स, तो ये मसल्स की वजह से, तो हेल्दी मसल जब होते हैं तो इनसे ही कंट्रोल होता है, ठीक है। यूरिनेशन जो हमारा किडनी है, ब्लैडर है, यूरिटर है, इन सारी चीजों को क्या चीज सपोर्ट दिए होगी, एब्डोमिनल मसल्स। जब एब्डोमिनल मसल्स वीकेंड हो जाते हैं तो इनका सपोर्ट सिस्टम जो है वो नॉर्मल नहीं होता, जिनकी वजह से ये सिस्टम जो है डिस्टर्ब होता है। फिर डाइट, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, फ्रूट, वेजिटेबल, कैफीन, इंक्रीज यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी। अब कुछ चीजें जो है डाइट में इंक्रीज यूरिनेशन करती हैं, इनटेक ऑफ फ्लूइड जो है वो अगर नॉर्मल से ज्यादा लें तो यूरिनेशन में इंक्रीज हो जाएगी। फिर कैफीन जो है वो भी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन उससे भी होगा। Salty food with less water intake decrease urinary output. जो salty foods है वो डिक्रीज करेंगे यूरिनेशन को। तो ये जो हमने अपना डाइट प्लान जब बैलेंस से इम्बैलेंस जाएंगे तो भी हमारा जो है यूरिनरी पैटर्न डिस्टर्ब होगा। कुछ चीजें अगर हम बार बार जूसेस पियेंगे तो जाहिर है यूरिनेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, या कॉफी का मग्गा भर के पी लिया तो बार बार हमें यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। अगर हम डिक्रीज लेते हैं वाटर और जो है इनटेक कम होती है हमारी, तो हमारी यूरिनेशन इनटेक आउटपुट जो है यूरिनेशन जो है वो भी हमारी यूरिन की आउटपुट वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से मेडिकेशन, डाययूरेटिक मेडिकेशन और सर्टेन ड्रग्स चेंजेस कलर ऑफ द यूरिन। अब कुछ डाययूरेटिक मेडिकेशन जो है समटाइम हॉस्पिटल में किसी डिजीज की वजह से जाते हैं, जिसमें स्पेशली किडनी डिजीज कह ले, समटाइम किडनी डिजीज नहीं भी होती, ओडिमा कह ले, ठीक है। ओडिमा, पफिनेस फेस और पाँव के ऊपर बड़ा बड़ा ओडिमा, तो उसके लिए डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले तो डाययूरेटिक मेडिकेशन देता है कि इसको बार बार यूरिन आए। जब बार बार यूरिन आता है तो जो ओडिमा हुआ होता है हमारे टिश्यूज के अंदर, मसल्स के अंदर जो पानी ज्यादा पानी की होती है वो कम हो जाता है और ओडिमा कम हो जाता है। इसी तरह फिर सर्टेन ड्रग्स जो है वो कलर को चेंज कर देती हैं, यूरिन के कलर को, जिसपे स्पेशली जो है वो आयरन की टेबलेट होती है। आयरन की टेबलेट जो है वो अगर हाइपोटेंसी में ले लेते हैं तो यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारी कलरफुल मेडिकेशन है जो यूरिन के कलर को चेंज कर देती हैं। अब कुछ है पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन। पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन में फीवर है नंबर 1 पे। अगर फीवर हो जाए तो फीवर की वजह से जो है फ्लूइड जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, फ्लूइड लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है फीवर की वजह से। फ्लूइड जो है, एक तो फीवर है तो फीवर की वजह से पानी पीने को दिल नहीं कर रहा, और दूसरा जो हमारा बॉडी के अंदर होता है तो वो भी बर्न हो जाता है फीवर की वजह से, ठीक है। और यूरिन की कंडीशन जो है पैथोलॉजिकली अगर देखें तो यूरिन आउटपुट कम हो जाता है और उसका कलर जो है वो डार्क कलर हो जाता है, या डार्क येलो या डार्क ऑरेंज टाइप, क्योंकि उसमें जो है अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कम है। बाकी चीजें कैल्शियम, सोडियम जो है नाइट्रेट, ये चीजें जो है इंक्रीज कर जाएंगी यूरिन में, जिसकी वजह से उनका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा।
फिर रीनल फेलियर, जिन पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है तो उनको रीनल फेलियर हो जाता है। एक टाइम आता है कि किडनी की डिजीजेज है या किडनी का इन्फेक्शन है, तो हम उसको इन टाइम मैनेज नहीं करते। जब हम इन टाइम मैनेज नहीं करते तो किडनी फेलियर हो जाता है। जब किडनी फेलियर होता है तो डेफिनेटली यूरिन की प्रॉब्लम्स होंगी, डिक्रीज यूरिन या यूरिन जो है आउटपुट जो है वो बिल्कुल यूरिनेशन नहीं हो रही होती। ठीक है। जॉइंट डिजीज में भी जो है यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज मेलाइटिस जो एक स्पेशली डिजीज है यूरिनेशन की, तो डायबिटीज मेलाइटिस में बार बार यूरिन आता है, और बार बार यूरिन आता है तो बार बार थर्स्ट फील होती है। जैसे ही थर्स्ट फील होती है तो फिर यूरिनेशन हो जाता है, फिर पानी पीते हैं फिर यूरिनेशन हो जाता है। तो ये डाययूरेटिक जो डायबिटीज मेलाइटिस जो है, इसमें स्पेशली जो है इन्फ्लुएंस ऑफ द यूरिनरी सिस्टम होता है। फिर नंबर 7 पे सर्जिकल प्रोसीजर्स में नंबर 1 एनेस्थीसिया जो है रिड्यूस द आउटपुट। दूसरी चीज जो है लोकल ट्रॉमा, अगर या तो एनेस्थीसिया दिया गया जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। दूसरी वजह है लोकल ट्रॉमा, जब लोकल ट्रॉमा होता है तो उस ट्रॉमा की वजह से यूरिनेशन नहीं होता। अब जैसे उसकी छोटी सी एग्जांपल है सर्जरी की, उसमें मैं 2-3 एग्जांपल दूंगी यहाँ पे। अगर किसी रेक्टल एरिया का जो है सर्जरी हुई है, जैसे पाइल्स की सर्जरी हुई है, तो वो उस यूरी जो है यूरिथ्रा के करीब है ना, उसके नियरेस्ट टू यूरिथ्रा उसके स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, तो जिसकी वजह से यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम होगी। या फिर पेरिनियल एरिया का कहीं भी जो है ऑपरेशन हुआ है, इसमें जो है फीमेल के जो है एपिजोटमी को ज्यादा काउंट किया जाता है कि फीमेल जो है तकरीबन हर जो है चाइल्ड बीरिंग फीमेल उसकी एपिजोटमी होती है। जब एपिजोटमी होती है तो उसका इन्फ्लुएंस जो है यूरिनेशन पे पड़ता है, क्योंकि उसको ट्रामा वहां पे हो जाता है ना, सर्जरी होती है, तो उस सर्जरी की वजह से उसको यूरिनेशन नहीं हो रही होती। मेथड टू प्रमोट द यूरिनेशन, अब हमने बहुत सारे जो फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द यूरिनेशन थे, हमने 9-10 फैक्टर जो देखे जो इन्फ्लुएंस करते हैं यूरिनेशन पे। जब ये सारी चीजें हम देखते हैं तो इसको प्रमोट कैसे करना है यूरिनेशन, ठीक है। रिस्पॉन्ड द अर्ज टू वाइड, अब वाइडिंग का जो रिस्पॉन्स है वो एज सून ASAP एज सून एज पॉसिबल जो है हमने रिस्पॉन्स उसका करना, रिस्पॉन्स टू अर्ज। ठीक है। अगर यूरिनेशन हो रही है तो उसको ये नहीं करना कि हमें थोड़ी देर बाद जो है वो यूरिन कर लेंगे, तो उसके अगर हम यूरिन को रोक के भी रखते हैं तो उसमें भी यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए जो जैसे ही जो है वाइडिंग की अर्ज होती है तो उसी वक्त जो है एज सुन एज पॉसिबल हमें यूरिन कर लेना चाहिए। या अगर छोटा बच्चा कह रहा है तो उसको रोकना नहीं, उसको फौरन से यूरिन के लिए भिजवा देना चाहिए। जैसे क्लासरूम में जो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं तो उस पे अगर वो अपने टीचर से पूछते हैं कि हमने यूरिन के लिए जाना, तो बच्चे को जाने नहीं दिया जाता। जब बच्चे को जाने नहीं दिया जाता तो वो बच्चा यूरिनेशन उसका यूरिन बीच में निकल जाता है, तो वो जो फैक्टर हमने प्रमोट करना है तो वो प्रमोट नहीं कर रहे होते। तो इसलिए हमें जैसे ही अगर स्कूल में बच्चा है तो टीचर उसको फौरन जाने दे, अगर घर में है तो मदर उसका ख्याल रखे और बच्चे को खुद पूछे बार बार कि उसको यूरिन आने वाली है तो वो फौरन उसको वॉशरूम भिजवाए। ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ यूरिन पर डे, अगर 8 to 10 या फिर 8 to 12 ग्लास पर डे जो है वाटर जो है फ्लूइड लिया जाता है तो उसमें नॉर्मल यूरिनेशन होगी। अगर इससे ज्यादा लिया जाता है तो जो है यूरिनेशन इंक्रीज होगी। अगर इससे कम होता है तो यूरिनेशन जो है वो डिक्रीज होगी।
नेक्स्ट है मेंटेन स्पाइनल हाइजीन, सॉरी प्रीनियल हाइजीन। अब प्रीनियल हाइजीन जो है उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्रीनियल हाइजीन जो है वो उसको मेंटेन नहीं किया जाएगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। जब इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जब इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं तो फिर जो है यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, यूरिन नहीं आता या फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिन होता है, या फिर जो है यूरिनेशन में चेंजेस आती हैं, कलर चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। 1 मिनट बेटा, मैं जो है जरूरी मैसेज आया वो मैं रीड कर लूं। जी, इसकी भी बात हो गई है कि 8 टू 10 ग्लास या 8 टू 12 ग्लासेस जो है इनसे कम या ज्यादा लेंगे तो या तो इंक्रीज या डिक्रीज यूरिनेशन होगी। फिर मेंटेन प्रीनियल हाइजीन, इसकी बात हो रही थी। प्रीनियल हाइजीन को अगर मेंटेन नहीं रखा जाता तो इन्फेक्शन हो जाते हैं प्रीनियल एरिया के। जब प्रीनियल एरिया के इन्फेक्शन होते हैं तो वो जो है यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, frequency of the urine, color change of the urine, pus in the urine, infection in the urine, decrease of the urination, etc. ठीक है। फिर एम्प्टी ब्लैडर जो है कम्प्लीटली एट ईच वाइट, जब वाइटिंग करते हैं तो ब्लैडर यूरिनेशन करते हैं, वाइट मीन के यूरिनेशन करना, जब भी यूरिनेशन करते हैं तो ब्लैडर को कम्प्लीटली एम्प्टी करते हैं। ठीक हो गया। आगे जो है अवॉइड फूड एंड फ्लूइड दैट कंटेन एक्सेसिव जो है सोडियम, और उन चीजों से जो है अवॉइड करना जो यूरिनेशन में प्रॉब्लम करते हैं। गिव सफिशिएंट टाइम टू वाइड, सफिशिएंट टाइम देना वाइडिंग के लिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्राइवेसी, जिसकी पहले भी बात हुई थी कि प्राइवेसी जो है वो प्रोवाइड करनी है, जिसमें प्रॉपर पोजीशन नंबर 1, दूसरी जो है पोर वार्म वाटर ओवर प्रीमियम, और कीप वाटर बोतल एट लोअर एब्डोमेन। अगर यूरिनेशन नहीं होती तो जो है वार्म वाटर जो है उसकी पोरिंग करनी होती है, उसके छींटे मारने होते हैं प्रीनियल एरिया के बाद। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सर्जरी के बाद जो है वो यूरिनरी सिस्टम जो है वो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आती है, यूरिनेशन ड्यू टू पेन जो है उसकी वजह से जो है पेशेंट सर्जरी के बाद यूरिनेशन नहीं कर रहा होता। सर्जरी की मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको दी है, तो उसमें पोरिंग ऑफ द वाटर करवाना होता है। इसमें उसे कहते हैं कि नीम गर्म पानी जितना वो बर्दाश्त करे वो लेके वॉशरूम में जाके तो उसको उसके छींटे 15 मिनट तक मारे। ठीक है। प्रीनियल एरिया पे जब वो ये प्रैक्टिस 2-3 बार करेगी तो उसको यूरिनेशन हो जाएगा, क्योंकि उसका जो फियर है ना, वो एक तो वार्म वाटर की तरह से वार्म वाटर जो है वो डालने से प्रीनियल एरिया पे तो अर्ज फील होगा यूरिनेशन का। दूसरा जो है वो फियर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें। और कीप वाटर बॉटल एट लोअर एब्डोमेन, और लोअर एब्डोमेन पे वाटर बॉटल रखती हूँ। ये मैंने एक तो प्रीनियल एरिया की जो है सॉरी ऑपरेशंस का बताया ना, सर्जरी का। दूसरा, अगर एब्डोमिनल सर्जरी भी हुई है, कोई भी जैसे लेप्रोटमी होती है, सिजेरियन सेक्शन होता है, कोई भी ऑपरेशन होता है, तो तब भी पेशेंट फियर फील कर रहा होता है यूरिनेशन एंड बावल एलिमिनेशन दोनों में। तो हम ये प्रैक्टिस करवाते हैं फिर पेशेंट को, ताकि उसका फियर खत्म हो। और जो वाटर बोतल जो है, हॉट वाटर बोतल, वो हम एब्डोमेन पे रखते हैं तो उससे उसकी पेन भी कम होती है और यूरिनेशन जो है पेशेंट को अर्ज फील होती है। ठीक है। टर्न ऑन रनिंग वाटर
फिर टर्न ऑन रनिंग वाटर भी हमने करवाना उसको, मेंटेन क्लाइंट यूजुअल पैटर्न ऑफ वाइटिंग, और उसको यूजुअल पैटर्न जो है वाइटिंग का वो मेंटेन करवाना, कि उसको सुबह यूरन आता है तो उसने सुबह लाजमी हमने वो पैटर्न उसका जो है मेंटेन करवाना है। अगर वो रात को सोने से पहले करता तो भी हमने उसको यूरिनेशन करवानी है। तो हमने ये ख्याल रखना कि जब उसका ब्लैडर, हमने उसके जो है फ्लूइड इनटेक का ख्याल रखना कि फ्लूइड इनटेक इतना ले लिया तो उसका ब्लैडर जो है वो फिल हो गया, तो हमने उसके बाद उसको यूरिनेशन मस्ट करवानी होती है। फिर असेसमेंट जो है, हम उसमें असेसमेंट अगर करते हैं तो असेसमेंट में सबसे पहले जो है हम सब्जेक्टिव डेटा देखते हैं, पूछते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव डेटा जो है वो एक ऑब्जेक्टिव डेटा एंड एक सब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा हमें पेशेंट आके हिस्ट्री देगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव डेटा जो हम खुद ऑब्जर्व करेंगे और खुद हम एग्जामिनेशन करेंगे। तो इसमें जो है ऑन क्लाइंट जो है, क्लाइंट डिस्क्रिप्शन फॉर अल्ट्रेशन इन यूरिन आउटपुट, जो सब्जेक्टिव डेटा वो अल्ट्रेशन ऑफ यूरिनेशन की बताएगा हमें कि यूरिन आउटपुट में उसकी क्या क्या अल्ट्रेशन है। दूसरी बात, स्पेसिफिक क्वेश्चन रिगार्डिंग लास्ट वाइडिंग, फिर उसके लास्ट वाइडिंग के लिए हमने उसके स्पेसिफिक क्वेश्चन करने। हाउ मैनी टाइम पर डे, हमने पूछना कि लास्ट वाइडिंग उसकी कब हुई है, और हाउ मैनी टाइम पर डे, कितने वो पर डे में कितने टाइम के लिए यूरिनेशन के लिए जाता है, और ईच वाइड कंटेन स्मॉल, मीडियम और लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, और हर वाइडिंग में वो कितना यूरिनेशन करता है। एनी नाइट वेकअप फॉर जो है मिक्चुरेशन, अब मिक्चुरेशन जो है वो कितनी बार वो वेकअप होता है यूरिनेशन के लिए रात के वक्त, ठीक है। तो मिक्चुरेशन मीन के बर्निंग यूरिनेशन, ठीक है। जब वो नाइट वेकअप होता है तो उसको मिक्चुरेशन, बर्निंग यूरिनेशन होती है। फिर जो है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, पहले तो हमने देखा है ना कि उसका हमने सिर्फ सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट किया। अब हम उसके रिस्क आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, कोई डायग्नोज करते हैं, तो उसमें रिस्क फैक्टर मस्ट हम साथ में आइडेंटिफाई करते हैं। एनी प्रीवियस प्रॉब्लम रिलेटेड एलिमिनेशन दैट रीनल जो है कैलकुलाई, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब हम ये देखते हैं कि उसको रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। एनी प्रीवियस प्रॉब्लम उन्होंने कहा कि हो सकती है, जैसे एलिमिनेशन में रीनल जो है कि उसमें कैलकुलाई में प्रॉब्लम होगी, या फिर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होंगे उसके। फिर हाउ इट वाज ट्रीटेड और रिसॉल्व, इसको किस तरह से ट्रीट और रिसॉल्व किया जाएगा। फिर एनी प्रीवियस रिलेटेड जेनिटो यूरिनरी सर्जरी, और इसकी रिलेटेड जेनिटो यूरिनरी सर्जरी क्या हुई है, और फिर अवेलुएट एनी अदर क्लिनिकल प्रॉब्लम, दूसरी क्लिनिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू जो है यूरिनेशन, वो भी हमें अवेलुएट करनी होगी। अब इस तरह की क्वेश्चनिंग हम पेशेंट से करेंगे कि उसको पहले कभी यूरिनेशन में प्रॉब्लम हुई, रिस्क फैक्टर है ना ये, साथ में हम उसके रिस्क भी देखेंगे कि उसको यूटीआई हो सकता है, कैलकुलाई में प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर ट्रीटमेंट जो है रिसॉल्व हो सकती है या नहीं, और जो भी हम जो इसको प्रॉब्लम हुई है या होने वाली है, इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है या नहीं, या इसकी सर्जरी हो सकती है, या फिर प्रीवियस रिलेटेड जेनिटो यूरिनरी सर्जरी हुई है वो उसके रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं। एवेल्युएट एनी अदर क्लिनिकल प्रॉब्लम, कोई और क्लिनिकल प्रॉब्लम हुई है या नहीं। अभी हमारी असेसमेंट चल रही है रीसेंट चेंजेस इन डेली रूटीन। अब जो हम जो है
क्वेश्चनिंग उससे कर रहे हैं तो उसमें हमने उसकी रूटीन, डेली रूटीन चेंजेस है वो भी पूछनी है। इंक्रीज एक्टिविटी, अगर कोई उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हुई है, फ्लूइड इनटेक, या वो फ्लूइड इनटेक ज्यादा ले रहे हैं, गर्मी का मौसम है, या उसको फीवर है, या कोई उसका को फ्लूइड जो है मशरूबात टाइप अच्छी ज्यादा मजे की मिली है तो उसने उसको ज्यादा इनटेक कर लिया। तो ये चीजें हमें असेस करनी है उसकी। इंटेक ऑफ बेवरेज दैट कंटेन अल्कोहलिक और कॉफी, ऐसी बेवरेजेस उसने ले ली हैं जिसमें अल्कोहल और कॉफीन होगी। ठीक हो गया। दूसरी मेडिकेशन, मोटर और कॉग्निटिव डिसफंक्शन। मोटर या कॉग्निटिव डिसफंक्शन है तो उसके लिए कोई मेडिकेशन ली है जिसकी वजह से उसके यूरिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है या आ सकती है। विजुअल इम्पेयरमेंट और कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट, अब उसका अगर विजुअल इम्पेयरमेंट या कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट है, ये भी साथ में चीजें, क्योंकि विजुअल इम्पेयरमेंट और कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट जो है इसका जो है ताल्लुक वो मोटर और कॉग्निटिव सिस्टम के साथ है। तो जब मोटर और कॉग्निटिव सिस्टम जो है वो डिसफंक्शन होगा तो यूरिनेशन में ऑलरेडी डिसफंक्शन होगा। डिसफंक्शन आइडेंटिफिकेशन, जो आइडेंटिफिकेशन डिसफंक्शन में ओपन एंडेड क्वेश्चन हमने पूछने, उससे प्रॉब्लम विद वाइडिंग पूछनी, और पेन और बर्निंग पूछना, और ये चेंजेस इन डार्क येलो और रेडिश यूरन, ये चीजें हमने उससे पूछनी। और एबल टू एम्पटी योर ब्लैडर कंप्लीटली, पास यूरन व्हेन यू कफ और स्नीज, जब वो कफिंग और स्नीजेस करेगा तो यूरन उसका यूरिनेशन होगी या नहीं। डिफिकल्टी इन स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग यूरिनरी जो है स्ट्रीम, ये सारी क्वेश्चनिंग करके इनमें से हमने ये हिस्ट्री है ना, ये इन चीजों से हमने निकालना है कि पेशेंट को कहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर जो है ऑब्जेक्टिव डेटा जो है, ऑब्जेक्टिव डेटा में असेसमेंट ऑफ यूरन, पहले सारी सब्जेक्टिव डेटा था जो हमने पेशेंट को से कुछ पेशेंट ने हमें बताया था और कुछ हमने क्वेश्चनिंग की। अब ऑब्जेक्टिव डेटा में जो है ब्लैडर यूरिनरी जो है सिस्टम देखेंगे हम, इनटेक आउटपुट जो है यूरिनेशन की देखेंगे, इनटेक आउटपुट पीरियड जो है वो हम फॉलो करेंगे उसका, कि उसने इनटेक क्या लिया और उसका आउटपुट क्या है। ठीक हो गया। फिर फिजिकल असेसमेंट करेंगे उसकी, इंस्पेक्शन, परकशन एंड पैल्पेशन। अब ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई कि जब भी कोई भी सिस्टम हम हेड टू टो एग्जामिनेशन और हेड टू टो हमारी क्वेश्चनिंग जो है वो पेशेंट के साथ होती है। जिस तरह मैंने 11 हेल्थ पैटर्न आपको बताया, तो 11 हेल्थ पैटर्न किसी भी सिस्टम के डिसफंक्शन होने के लिए साथ में रिलेट कर रहे हुए होते हैं। जब हमने हिस्ट्री लेनी तो हमने 11 हेल्थ पैटर्न की हिस्ट्री लेनी होती है और उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हमें जो है वो रिलेट कर रहा होता। फिर सिस्टम के स्पेशली जिस तरह मैंने क्वेश्चनिंग बताया वो क्वेश्चनिंग उसी सिस्टम से रिलेटेड, उस जो है वो डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन, डाइट से रिलेटेड जैसे मैंने बताया इनटेक आउटपुट जो है वो कितना लेगा, इनटेक आउटपुट जो है उसका ताल्लुक एक तो डाइट से, दूसरा उसके मसल्स वीकनेस से, तीसरा जो है यूरिन आउटपुट जो है डिक्रीज और इंक्रीज होगा। जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल असेसमेंट करते हैं तो हम इस फिजिकली बाकी सिस्टम को भी असेस कर रहे होते हैं, बट हम फोकस उस सिस्टम का कर रहे होते हैं। अब जो यूरिनेशन का सिस्टम है उसमें हमने असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट में जो हमारी इंस्पेक्शन होगी वो किडनीज की भी होगी, ब्लैडर की भी होगी, यूरिनेशन यूरिटर्स की भी होगी और यूरिथ्रा की और प्रेनियल एरिया की। ये सारा जो सिस्टम है हमारा यूरिनरी सिस्टम है, इसलिए हमें टोटल जो है उसकी इंस्पेक्शन करनी होगी। रेडनेस, स्वेलिंग, रैशेस, स्टोन, इन्फेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमने इंस्पेक्शन कर दी। और दूसरी हमने परकशन करनी, तीसरी जो है पेल्पेशन। ठीक है।
اب یہ چیزیں جو ہے یہ کرنے کے بعد ہم جو ہے 90% ڈائگنوز کر لیتے ہیں. 90% ڈائگنوز کرنے کے بعد جو ہے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ اینڈ پروسیجر ہم اسی وقت جو ہے سب سے پہلے تو ہم ہسٹری لیتے ہیں. ہسٹری لینے کے بعد جو ہے ہم جو ہے ایگزامینیشن کرتے ہیں. ایگزامینیشن کے سٹیپ جو ہے جیسے آبزرویشن, پرکشن اینڈ پیلپیشن. ٹھیک ہے, تو آبزرویشن, پرکشن اینڈ پیلپیشن کرنے کے بعد ہم 90% جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ اس کو پرابلم کیا ہے. تو اس کو جو ہے اتھینٹک بنانے کے لیے, سائنٹیفک بنانے کے لیے ہمیں اب سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے اس کی جو ہے انویسٹیگیشن کیا کرنی. اس سے پہلے تو ہم کھڑے کھڑے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی نا, کہ جب تک ہم نے سسٹم کو ایگزامن کیا ہی نہیں کہ ہم نے انویسٹیگیٹ کیا کرانا. ٹھیک ہے, اب کلیکشن آف یورنس جو ہے اسپیسیمن, رینڈم اسپیسیمن, ہم نے کلیکشن آف یورن کرنا ہے. کلیکشن آف یورن جو ہے اس میں ایک تو ہم نے رینڈم جو ہے وہ اسپیسیمنس لینے ہیں, اور دوسرا کلین جو ہے کیچ اور مڈ اسٹریم اسپیسیمن. دوسرا ہم نے مڈ اسٹریم رات کے وقت کا جو ہے اسپیسیمن لینا. پھر 24 آور اسپیسیمن, ایک اسپیسیمن ہم نے جو ہے وہ 24 آورس کا یورن کلیکٹ کر کے اس کی ہم جو ہے ایک تو اس کو چیک کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, لیب میں, اور دوسرا اس کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے کلیکشن آف یورن 24 آور میں کتنا ہوا ہے اور کتنا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ مانیٹرنگ ان پٹ کی بھی ہو رہی ہوگی, کہ ان پٹ جو ہم نے نارمل دیا تو آؤٹ پٹ جو ہے وہاں کیا ڈیفیکلٹی ہے, ڈیکریز ہے یا انکریز ہے. پھر اسپیسیمن فرام ا کیتھیٹر. سم ٹائم ہم پیشنٹ جو ہے اس کو کیتھیٹر ڈالتے ہیں, اور یورن جو ہے سم ٹائم ہم جو 24 آورس کا یورن یا ہم نے اس کا رینڈم سیمپل یا مڈ جو ہے سٹریم رات کو کے وقت ہم نے سیمپل لینا, تو وہ تو ہم پیشنٹ کو جو ہے وہ ایک جو ہے سیمپل کے لیے یورینیشن کے لیے ایک بوتل دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ لیب سے مل جاتی ہے, وہ اس کو دے دیتے. دوسرا ہم اس کو کیتھیٹرائز کرتے ہیں پیشنٹ کو. کیتھیٹرائز پہ اسپیسیمن فرام کیتھیٹر, یورین ٹیسٹ اینڈ بلڈ ٹیسٹ. اور کیتھیٹرائز کے اندر سے ہم وہ یورین سیمپل لیتے ہیں, اور جو 24 آورس کی یا 12 آورس کی کلیکشن یورینیشن کی ہوئی ہے یورین بیگ میں جو جس کے کیتھیٹر لگا, تو ہم نے وہاں سے جو ہے سیمپلنگ لینی ہے, اور وہاں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنی اس کی آؤٹ پٹ ہوئی ہے. پھر اس کا اسی طرح سے بلڈ کے بھی کچھ سیمپل لینے ہیں ہم نے اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس سے جو ہے یورینری آؤٹ پٹ ایک تو پتا چلے گا کتنا, دوسرا آرڈر آف دی یورین پتا چلے گا, تیسرا جو ہے اسپیسیفک گریویٹی آف دی یورین پتا چلے گا, پھر کلر آف دا یورین اور انفیکشن ان دا یورین, پاس سیلز ان دا یورین, اینڈ جو ہے اسپیسیفک گریویٹی آف دی یورین, الکلائن آف دی یورین. یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں اس سیمپلس سے پتا چلے گا. پھر جو ہے نارمل اینڈ اب نارمل, کمپیریزن آف نارمل اینڈ اب نارمل, فائنڈنگ آف دی بلیڈر ڈسٹینشن. اب بلیڈر ڈسٹینشن کی جو فائنڈنگ ہے نارمل اور اب نارمل, میرے پاس جو ہے 48 منٹ ہو گئے ہیں, تو میں آپ لوگوں کو جو کمپیریزن آف نارمل اینڈ اب نارمل فائنڈنگ اپنے نیکسٹ لیکچر میں پڑھاؤں گی. ابھی میں آپ لوگوں کی اٹینڈنس لے لوں. ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی آن لائن ہوں, بٹ پہ اٹینڈنس لے رہی ہوں آپ لوگوں کی.
اوکے بیٹا، اٹینڈنس ہوگی. اللہ حافظ.